Kaju kaju ngunu tordum laju nali nyabne Kaju kaju gadum laju nyabdircine Kaju kaju ngunu tordum laju nali nyabne Kaju kaju gadum laju nyabdircine Men go men raba me go meraba te bolu kolo lu min garaba Men go men raba me go meraba no boja kolo jamin garaba gumin kate go te dam raba damin ka bado badam raba biko ge manam gejin garaba boddo se manam sejin garaba kaju kaju munu tordum laju nali nyabne kaju kaju gadum laju nyabdircine Gita gata puyan narlin raba Kona gata muhan narbaraba Gata gata puam narlin raba Kona gata muam narbaraba Aji kapjua duyo madoba Olo kanga kereya madoba Dikone turbugo Turaga geba Mugdone dalgo Daraga geba Luna gerbangi ba Banaga lagjunga Chedunga korga ba Nurga gagga ba Kaju kaju munu tordum laju nali nyabne Kaju kaju gadum laju nyabdircine Go mujab go jab raba Gumin gam Yoro min go min raba Hoy gam Biriye Murga hiloga hok aling namem ngo BJP lepara da trobloke bo puam swagat oke thanks andang na oke hiloga na agam besi taskama murga Ladda kalau ke MP Sering sab Parliament bolo dam jamnya mu nun tabbe nana 370m hekta go mun nunu India go mega famous ka mun hilo mun nam address dira basara go okay basari gi BJP A team B team kadu di egam chief minister mun menjira Nuna malba diyan ba taka kitla kamla wo mendang na oke hiloga buppe aling na gadi nunu modi ne alba meram kiran ne butam jiru langka kumdang na oke mega honorable chief minister Pema Khandu ne basaran develop ridba alba meram nyawa jini dirsine Nirian lelka maduna ke. Dan mengok swagat basenam hongo katam lape. Thank you. Hiloga alohogo mopi nagamba lalekeng goda happy mopi nuisam ne takamam jidak nai. Oke amdula munka sar munhin munka lepara dahoko sar हमारा lepara जो है बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है तो ये सुंदर डिस्ट्रिक्ट में आप दोनों आज हमारे लिए कैंपेन करने आए हैं तो मैं इसके लिए आप दोनों को तहे दिल से थैंक यू देती हूँ सर Alhamdulillah, hilo, higi
ga bajia ngun ka leparada district higumne area development inam lagabe hinyu yob dakom ngun ka hogo sar ngun ka munam hisab ba ngunuk munam hisab BJP pula kili pa lagi du kamal pula kili pa lagi du amla ngota kam nok leparada ga public mendak nai amangun ka Narendra Modi ji का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप अंदर लो उनका ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने योग तक कम आके ना किना अपाक माब मुने उनु भूतम कास्ट जिरु लाजका अमलांगो मेंदागना मुने उनु हिनी मोलेन कुमायम उनु यूनियन मिनिस्टर उन लोस देखला एक लगाब लाइन होरी बुदा आके लोक इंदब उन होगो BJP उनका MLA कैंडिडेट इना असेंबलियम सिम पाप लगी दो MPM सिम पाप लगी दो अमला ngok public takamam nunam epil damna aya hila hinuga anyum unka leparada higumne kaken jab kamal pul kili mola juka amla takamam epil dunaka amdula hilo unka nguno ngomoka honorable chief minister Pema Kandu ji ga andar lo sar yogo menna sin sar ga guide lo ka sar ga andar lo ngonagu kamisam idu naka ilpak amla ngomendang na sar हम आपका अंडर में आपका गाइडेंस में जो भी काम करना है हम आप ही का साथ है आप जैसे जैसे हमको गाइड करेंगे उसी लाइन पे हम चलेंगे मैं मेरा पब्लिक का सामने प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हम आपका सत्य साया का अंदर आप जैसे काम हमको जैसे गाइड करेंगे ऐसे ही हम काम करेंगे अमल दोला उनका पब्लिक गद्दा आया हिला होरी बुदा आकेन ब इंदब उनका लाइन होकेन ब इंदब MPM सिन MLM सिन लाइन आकेन ब इंदब हिन्युगम ने पुलो BJP lo योग dakom hinyugam pulam tubru dob ila juga ngunka honorable CM sab tu ngunka leparada majab bagdu ayadu majab keardu aduna naku nam itu ingo higdo letu district headquarteram jitu taga ngunka divisional commissioneram jitu tagam ne kaken jab ipu dob am headquarteram sin sarmu hog inaugurationam inyum to al nengkama am nen la mapu do al headquarter alo sar mu alo nam had kula inauguration hit ba unu hori buda ken ba inla juka ok pagu ga munka tam hakar divisional commissioner tam sin tol ko de tolo sar had kula inauguration hit ba unu hori buda ken ga line aken ga inla hinyugam kaken ba muga munan mo namba mun takam yo bidakom baken go ba butam hinyugam leparada huge margin yaka margin lo ka ngunu landslide ka margin lo ka jiti do ba takam butam tubla jukam lang menggap dangna ngo amdula nunnam ne aken akinam ne manyu munu manyu kenyi remur to या दोनों सिन हिन्यू मुनु गलती नहीं करना है रमो रो कुप लगी माँ एकदम तक्का पब्लिकम वो एकदम में तक नाक आया हिला हिन्यू या दोनों सिन दोबारा हम लोग गलती नहीं करना है हमला में तक नाक है हम दोला वो तक्का में होप को का दो नारुम होप दो उनका लपारा का होगा उनका ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब गसिन बूता याक का गो imp lagi do ekdom huge margin lo ke landslide margin lo mun katom lap lagi do amla ngonun nam publicam ne mendagna oke ngo sar munuk andar lo yogo etla area development tam yogo ikendo de alloro ne aken ga menam mun sin sar mun mun nasba hilo hinun kapadu yedu nak oke yebam hidu nak ijane sar munuk lo ke nun den tatla ka amdula ngo yaka ja agament ma ngo agmam ne hogmen pindang na भारत माता की भारत माता की भारत माता की थैंक यू Agambe
हम लद्दाख से आते हैं और आपके भाषा में नमस्ते को अगम्बे बोलते हैं, उसी को हमारे लद्दाख के भाषा में झूले बोलते हैं। झूले, इस शब्द को कभी ना भूले। देव तुल्य जनता, इस बासर के आप सबको मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और आज इस अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश भर से आपकी बार 400 पार में अरुणाचल से भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से आप लोगों ने देना है और यहां भी डबल इंजन का सरकार बनाना है। इसी मुहिम में, इसी कैंपेन में थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं लद्दाख से आया हूं और बड़ा खुशी हुआ यहाँ पे जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री यंग, डायनेमिक, एजुकेटेड एंड मोस्ट टैलेंटेड श्री पेमा खांडू जी जिस तरह से अरुणाचल के विकास को आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पे मेजर 26 ट्राइब है और 100 से ज्यादा सब ट्राइब से सबको साथ लेके सबको विकास करने का काम आज हमारे पेमा खांडू जी कर रहा है। और आज हमारे लिए यह गर्व की विषय है कि पेमा जी के नाम से हम वोट मांग रहा है। यहां मैंने अरुणाचल के अलग अलग जगहों को पूछा कि पेमा का मतलब क्या है। आप लोग जानते हो पेमा का मतलब क्या है? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के नाम पेमा से है, पेमा खांडू। इनके मोंग तावांग के भाषा में या यहाँ के खांबा मेंबा के भाषा में, हमारे लद्दाख के भाषा में या तिब्बती भाषा में पेमा जो है कमल को बोलते हैं। तो कितने ऊपर वाले ने भी सोच समझ के कितने यहाँ तालमेल बिठाया है। इसलिए पेमा जी के नाम से आपने पेमा यानी कि कमल का बटन 2 दबा के यहाँ से हमारे महिला कैंडिडेट को भी जिताना है, श्रीमती न्याबी जिनी जी को, और साथ ही साथ श्रीमान किरण रिजिजू जी को भी बहुत बड़ी मार्जिन से जीत के यहां से प्रधानमंत्री मोदी जी को देना है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से नॉर्थ ईस्ट से 2 MP और विशेष रूप से आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्रीमान किरण रिजिजू जी को बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन के साथ प्रधानमंत्री जी के आपकी बार 400 पार में तोहफे में देना है। देंगे? आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? बताइए, आपकी बार 400 पार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। उसी तरह मैं यहाँ पे पूरे अरुणाचल प्रदेश वासियों को, विशेष रूप से श्रीमान पेमा खांडू जी को और भारतीय जनता पार्टी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जनता ने, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की जनता ने पेमा खांडू जी पे इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया, 10 MLA अनकंटेस्टेड गिफ्ट में दे दिया। इससे पता चलता है पेमा खांडू जी को इस अरुणाचल प्रदेश के लोग कितना प्यार करते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं। माने ये इलेक्शन केवल फॉर्मेलिटीज है। चुनाव जीत चुके हैं, मेजोरिटी आ चुके हैं, केवल शपथ ग्रहण के इंतजार में है। आज आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से महिला MLA पहली बार गालो ट्राइब को इज्जत बढ़ा के जीत के जाने वाला है। मैं गालो ट्राइब के लोगों को बताना चाहता हूं, जिस तरह हम गालो ट्राइब वाले अपने कल्चर को लेके, अपने आइडेंटिटी को लेके, अपने भाषा को लेके, अपने भूमि को लेके कितना प्राइड करते हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं, उसी गर्व को बढ़ाना है तो आपके यहां से पहला
नाबी जिन्नी बिरची जी महिला एमएलए बन के अरुणाचल के विधानसभा में आप लोग भेजेंगे भेजेंगे। ये मिसाल होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में इस देश के जनता ने पहली बार एक ट्राइबल वुमेन को भारत के राष्ट्रपति बना के रखे। उसी प्रकार से आज गालो ट्राइब के लोग अपने घर से अपने मां सम्मान, अपने बेटी सम्मान, एक नारी को शक्ति देके अरुणाचल प्रदेश में एक गालो ट्राइब की इज्जत बढ़ाने के लिए आपने एमएलए भेजना है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि गालो वालों को ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है आपके पेमा खांडू जी ने गालो वालों के लिए कितना बढ़िया काम किया। आपके यहाँ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट आधा अधूरा बन के बैठे थे, पेमा खांडू जी ने उसको फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बनाया। आपके यहाँ बासर में ये लेपराडा डिस्ट्रिक्ट जो है पेमा खांडू जी ने दिया है। माने आपके गालो ट्राइब में 2 डिस्ट्रिक्ट दिया है। मैं कह सकता हूं पेमा खांडू जी ने अपने दोनों किडनी निकाल के आपको दिया है। और क्या चाहिए गालो वालों को, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा प्यार मोहब्बत पेमा खांडू जी की ओर से और क्या चाहिए? इसलिए आपने, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग बिल्कुल सीधा होते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होते। इसलिए आपने 2 डिस्ट्रिक्ट के बदले 2 बटन कमल पे दबाना है, पेमा पे दबाना है। करेंगे? मैं विश्वास मानूं? पक्का? भाई मैं वादा लेके जा रहा हूं, कल लद्दाख में जाके बोलूंगा गालो वाले झूठ नहीं बोलते। पक्का बोल सकते हैं? बहुत खुशी हुआ आप लोगों की ये रिस्पांस देख के। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत नमन के साथ शीश झुका के धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से हम जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार दिल्ली में, अरुणाचल प्रदेश में 50 पार। अब की बार 50 पार, अब की बार 50 पार, अब की बार 50 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल प्रदेश, जय बासार, जय गालो। लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्यारे वासियों, पेमा खांडू वापस अपना डिस्ट्रिक्ट आ गया है। आप सभी को पता है कि 2024 का इलेक्शन अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं और पिछले कई दिनों से मैं अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं पूरा टूर कर रहा हूं। मैंने पूरा कमिंग बेल्ट को कवर किया, सारा सुबनसिरी बेल्ट को कवर किया और खास करके अर्ट्सवाइल अपना सियांग बेल्ट में तो मैं इतना बार आ चुका हूं, आप सबको पता है। पिछले कई दिनों से मैं सियांग बेल्ट का हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं घूम रहा हूं, कोने कोने में घूम रहा हूं। कल ही मैं दूर दराज इलाका वहां टूटिंग एरिया में भी जाके आज आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूं। मैं सोचा कि सब जगह हम इतना टूर मार रहा है तो हमको अपना डिस्ट्रिक्ट लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में हमको अपने ही परिवार जन के बीच में जाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज मैं आप सबका आशीर्वाद को लेते हुए फिर यहाँ से दोबारा फिर मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ लोहित बेल्ट में मैं आज जाने वाला हूँ। पॉलिटिक्स में सेकंड प्राइज नहीं होता है, स्पोर्ट्स में होता है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कंसोलेशन प्राइज भी होता है, मगर पॉलिटिक्स में जो जीता वो सिकंदर। 2024 का इलेक्शन ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीत चुके हैं। आप सभी लोग जो अपना चारों सर्कल से यहाँ पे जो आए हुए हैं, आप सबका आशीर्वाद
हमारे ऊपर में छाया हुआ है, ये हमको पता है। और खास करके आप लोगों के लिए पिछले हमारा टेन्योर में कई सारा काम हमने करके दिया हुआ है। हमारा जेटीएन साहब ने भी अपने स्पीच में 2-3 पॉइंट यहाँ पे कवर किया। आप लोगों का देखिए लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट कागजों में तो बहुत पहले ही बना कर रखा था, मगर उस डिस्ट्रिक्ट को फंक्शन होने में कई सारा टाइम लग गया। बहुत सारा सरकारें आए मगर उसको फंक्शनलाइज कर नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत ही हमने लोअर सियांग का जो इश्यूज था उसको रिजोल्व करते हुए आज अपना लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एक फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट के तहत वो अभी ऑपरेशनलाइज हो चुका है, ये आप सबको पता है। और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत पुराना एक डिमांड था कि अपना लेपरादा में भी अपना गालो समाज का एक डिस्ट्रिक्ट एक चाहिए बोल के। उस वक्त में अपना गोजिनगादी साहब यहाँ के विधायक हुआ करता था, उस वक्त में अपना तबुम बाम साहब चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था। आज जितने भी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित है वो सभी लोग सर्विस में हुआ करता था। उस वक्त में हम अपना सौर के पिताजी यहाँ में आने के बाद तो उन्होंने घोषणा किया था कि वो अपना टेन्योर में जरूर बना के देंगे, मगर उसका अपना लाइफ ही इस प्रकार से था कि वो उस सपना को पूरा कर नहीं पाया। मगर आप लोगों का जो चाहत था, आप लोगों का जो सपना था, उस सपना को हमने काम करके दिया कि नहीं दिया। मैंने लेपरादा डिस्ट्रिक्ट बना के दिया हुआ है आपको, आप लोगों को डेडिकेट करके दिया हुआ है। सीएम साहब का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, फलाना लोगों का आशीर्वाद है। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी को कि झूठे खबरों को ऊपर में विश्वास नहीं करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का कैंडिडेट है तो मैडम न्यावी जिनी दिर्जी जी है, पेमा खंडू का कैंडिडेट है तो मैडम न्यावी जिनी दिर्जी ही है। आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करना है। 2019 इलेक्शन में भी हमको पता है कि इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग फैला के हमारा गोजिनगादी साहब को भी इस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हराया था, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को मिसगाइड करते हुए। इस बार देखो गलती नहीं करना है। मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, पेमा खंडू डुअल पॉलिटिक्स खेलने नहीं आता। पेमा खंडू जो बोलता है वो काम करके भी देता है, ये आप सब लोग जानते हैं। दो नाव में पांव रखने का हमारा आदत नहीं है, क्लियर कट है, क्लियर कट। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था मार्च में अपना सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर का फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए, उस वक्त में यहाँ के विधायक भी बीजेपी में ज्वाइन हो चुका था। उस वक्त में अपना दिर्जी मैडम भी साथ में थे और इसी ग्राउंड में था, हम लोग इसी ग्राउंड में कार्यक्रम किया था। उसमें भी मैंने क्लियर कर कहा कि हो पाने से अभी यहाँ का एमएलए साहब और मैडम न्यावी दोनों बीजेपी में आ चुका है। इस डिस्ट्रिक्ट में अभी ओपोजिशन पार्टी का यहाँ पे कोई मौजूदगी भी नहीं है, नॉन एक्सिस्टेंस है ओपोजिशन। मैंने अपील किया था कि इस बार का चुनाव में आप लोग अनअपोज करके भेज दीजिएगा। पार्टी दिल्ली का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसको भी टिकट देगा उसको अनअपोज करके भेजिए। मैंने अपील किया था कि नहीं किया था? उस वक्त में मैंने सोचा कि अगर गोकर को टिकट मिलता है तो मैं मैडम को रिक्वेस्ट करके मैडम को बैठा दूंगा। उस वक्त मैं सोचा था अगर यहाँ भी मैडम को टिकट मिलता है तो गोकर को बात करके उनको मैं बैठा दूंगा। पिछले महीना 13 तारीख को, मार्च 13 तारीख को दिल्ली में अपना भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से टिकट अनाउंसमेंट हो गया। टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद तो मैं यहाँ के विधायक गोकर को भी मैंने मिलके उनको बताया, देखिए आप बहुत ही जवान है, आपका फ्यूचर बहुत लंबा है, अभी आप यंग है, पार्टी में बैठो, पार्टी का सिस्टम को समझो, अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रॉब्लम्स है पार्टी के साथ में कार्यकर्ता के रूप से जोड़ के स्टेट में हमारे साथ काम करो। मैडम को यहाँ से अनअपोज करके आप भेजो, मैडम का साथ में मिलकर अपना टीम लेपरादा के हिसाब से इस डिस्ट्रिक्ट को और भी आगे लेके जाना है। मैंने बहुत अच्छा से उनको समझाया, मगर पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, इन सब में सभी का अपना एक राइट होता है, तो उन्होंने हमारे अपील को सुना नहीं। तो इसलिए आज आप लोगों को देखना है कि देखिए अभी जिनी मैडम यहाँ से बनने के बाद
तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि बहुत पहले से ही आप लोगों का अपना बसर कॉन्स्टिट्यूंसी, इस पूरे लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के आशीर्वाद हमारे ऊपर में पूरा छाया हुआ है। तो आने का मैडम यहाँ से एमएलए बनना तो पूरा तय है, ये मैं आज मान के जा रहा हूँ। एमएलए बनने का बाद फिर मैं दोबारा फिर यहाँ पे बसर इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आएंगे। उस वक्त में अपना किरण जी को भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किरण जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट किरण जी का प्रति होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। किरण जी को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे और तब जाके हम लोग एक अच्छा माहौल से हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। आज मैं देखा अपना, वैसे तो मैं बहुत सारा पोनू पार्टी को मैंने देखा, लेकिन आज का जो पोनू पार्टी अलग अलग गाँव से जो आए हैं, हिस्टोरिक है। इतना ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन मैंने लाइफ में नहीं देखा, इसलिए जितनी भी जो पोनू पार्टी आप सब लोग जो गांव से आए हुए हैं, हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके अपना एमपी लद्दाख जेटीएन साहब के और उनकी टीम की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेमा खंडू का निकला हुआ, अपने जबान से निकला हुआ ये शब्द है, जो बोलता है वो करता है। मैं बाकी पॉलिटिशियंस जैसा नहीं हूँ, जो बोलता कुछ है करता कुछ है। जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ, इसलिए कान खोल के दोबारा सुन लो। अरुणाचल प्रदेश में अगर गलती से भी नॉन बीजेपी कैंडिडेट कोई भी जीतता है तो बीजेपी में एंट्री नहीं होगा। उनको बीजेपी से बाहर बैठ के ही 1 साल में 3 करोड़, 5 साल में 15 करोड़ से ही काम करना होगा। ये पेमा खंडू का वर्ड्स है। जो भी डेवलपमेंट उस डिस्ट्रिक्ट या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे, मैं अपना हिसाब से करूंगा, अपना कार्यकर्ता का हिसाब से हम लोग खुद करेंगे डेवलपमेंट। ये पेमा खंडू का जबान है। तो इसलिए आज मैं यहाँ से पूरे विश्वास के साथ में जा रहा हूँ कि आप लोग अपना न्यावी मैडम को लैंडस्लाइड विक्ट्री से भेजेंगे और किरण जी को भी थंपिंग विक्ट्री से यहाँ से जिता के भेजना है। आने वाला दिनों में मैं तो ये भी कहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश का भी फ्यूचर का मुख्यमंत्री एक महिला ही होगा, ये भी मैं कहता हूँ। सबसे ज़्यादा इस बार बासर और कुछ डिस्ट्रिक्ट से ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और सबसे शांतिपूर्वक डिस्ट्रिक्ट गिने जाने वाला को, तो आगे चलकर और ज़्यादा लॉ एंड वायलेंस भी हो सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ से कैसा अपील रहेगा सर? मैंने भी सुना है कि शायद कुछ दिन पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैं तो यही अपील करेंगे कि देखिए डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो 5 साल में आएंगे जाएंगे, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे आज जो चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी और एनपीपी जो लड़ रहा है, मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज से यही अनुरोध करेंगे कि वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जो जिसको भी वोट मारना है, सब लोग ने मान तय करके रखा है, आप मारिए, आप बीजेपी को मारिए, है मोस्ट वेलकम। बीजेपी को नहीं भी मारना है, दूसरा कैंडिडेट को देना है, दीजिए, लेकिन वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो खास करके युवाओं को, यूथ को हम अपील करना चाहेगा। यहाँ में बसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग हैं, सब अपने ही लोग हैं, अपने ही रिश्तेदार लोग ही है, अपने ही भाई बहन लोग हैं। तो पॉलिटिक्स का नाम में वोट जिसको मारना है मारिए, मगर आपस में फाइटिंग करके, आपस में लड़ाई करके उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ का प्रशासन और ख़ास करके पुलिस को भी अनुरोध करेंगे कि ये वायलेंस जो अभी थोड़ा बहुत हुआ है और आने वाला दिनों में ताकि वायलेंस ना हो, उसको आयरन हैंड से डील करना चाहिए। सर मेरा तरफ से एक सवाल रहेगा सर। एक आप हमेशा कहता है पेमा खांडू जो बोलता है वो करता है, तो देख रहे हैं हम लोग भी आप कर रहे हैं, तो सर लेकिन यहाँ आप आज भी एक पेमा सर के किरण साल के लिए बहुत अच्छा बात किया है, लेकिन एक वॉइस मैसेज अभी वायरल हो रहा है, पूरा अरुणाचल में वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहा है कि आप पेमा खांडू जो है तोको शीतल को सपोर्ट कर रहे हैं। सर इसमें आपका क्या कहना है? ये तो आई थिंक 2024 का ये तो सबसे मास्टर जोक होगा ये। मैंने भी सुना उस बार, ये जो व्हाट्सएप में जो घूम रहा है। तो देखिए अरुणाचल का पब्लिक लोग बहुत इनोसेंट होता है और आपको पता है, और कहीं हद तक हमारा यहाँ का राजनेता लोग भी बहुत इनोसेंट होता है। तो उसमें मैं देखा कि एक फॉर्मर मिनिस्टर वो किसी से बात करता है, तो वहाँ से जो बात करता है बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में उनको मतलब बोलते हैं। तो ये देखिए ये पूरा झूठा है। आजकल का दुनिया में ऐसा नहीं चलता है। बीजेपी का जो भी उम्मीदवार है हम लोग पूरा उसके साथ ही खड़े हुए हैं। किरण रिजिजू जी अपना अरुणाचल का एक पहचान है, नॉर्थ ईस्ट का एक पहचान है। मोदी मिनिस्ट्री में उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया जाता है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स। सो आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, टू बी पार्ट ऑफ दिस पार्टी।
तो अपना पार्टी ने दोबारा इस बार उनको वेस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मैं पूरा तन मन से उनके लिए लगा हूँ, पब्लिक के पास जाके किरण रिजिजू जी को वोट मांगने में मैं लगा हूँ और हमें पूरा विश्वास है जनता जो है हमारा अपील को वो लोग सुनेंगे और इस बार भी किरण को लैंडस्लाइड विक्ट्री से यहाँ से जिता के दोबारा पार्लियामेंट भेजेंगे। यहाँ पे मैडम से लास्ट सर, तो जैसे सर आज सीएम साहब भी बार दोबारा कह सकते हैं पहला ऐसा होगा कि एक फीमेल कैंडिडेट के लिए सपोर्ट दिखाते हुए दोबारा मीटिंग करते हुए यहाँ आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? इसके साथ जो लद्दाख एमपी सर भी आए हैं, आपकी तरफ से क्या कहना है इस पर? जी, मैं बहुत लक्की वोमेन है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि मुझे हमारा ऑनरेबल सीएम साहब का सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिला है और साथ साथ आज लद्दाख के एमपी साहब जी जो बहुत ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, तो उन्होंने भी हमारा लफारादा आया हुआ है हमें सपोर्ट के लिए, मुझे सपोर्ट के लिए। तो सबसे लकीस्ट वोमेन बीजेपी का मैं ही हूँ, मैं ये समझती हूँ। एमपी सर, आप भी जाते जाते सर आप इतना दूर से आए हैं और साथ में सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि नो डाउट सर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए सर, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो हाल ही में आपके लद्दाख में हमने ये देखा है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हंगर स्ट्राइक चल रहा था, उस पर सर मोदी जी ने एक बार भी वहाँ पे दर्शन नहीं दिया था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं आज अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन कैंपेन के लिए आया हूँ, तो यहाँ के बाद मैं ज़्यादा करूँगा। अरुणाचल प्रदेश इतना खूबसूरत प्रदेश है और प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद आने के बाद यहाँ के पेमा खंडो साहब सीएम के साथ साथ डबल इंजन के सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अरुणाचल को ऊपर उठाने का काम किया है, चाहे यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने में हो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बनाने में हो, रेलवे बनाने में हो, या अलग अलग जो डेवलपमेंट दूर दराज इलाके में। कल वहाँ हम तुतिंग जाके या तुतिंग के गेलिंग तक, वहाँ तक सड़क पहुँचाने का काम इस डबल इंजन के सरकार ने किया है। और ख़ासकर इस नया डिस्ट्रिक्ट का जो है जन्मदाता ही मैं कहूँगा पेमा खंडू जी ही है। तो पेमा खंडू जी के नाम से, माननीय मोदी जी के नाम से आज यहाँ पे हमारे कैंडिडेट एक महिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में और इस बासर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ महिला वुमेन कैंडिडेट को बड़ी बहुमत से जीत दिलाने के मदद में आए हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जिन तरह जनता का यहाँ पे रिस्पॉन्स है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ, बड़ी मार्जिन के साथ एक बार फिर से अरुणाचल में सरकार बनाने जा रहा है। आपने पूछा लद्दाख के संबंध में, लद्दाख में ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। आप जब इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे, सबसे पहले जब ये इशू उभर के आए तब से लेके हाई पावर कमेटी एक डेलीगेशन लद्दाख से बुला के बार बार होम मिनिस्टर साहब ने 2 बार 4 बार गृह मंत्रालय में बार बार मीटिंग हुआ है। सरकार की ओर से हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के रूप में, चाहे ज़मीन का हो, नौकरी का हो, पहचान का हो, सब बचाने का पूरा इरादा सरकार ने जताया है, कमिटमेंट भी दिया है। साथ ही साथ वहाँ के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सशक्तिकरण करने को लेके हुए बजट पूरा काउंसिल के थ्रू देने, सब चीज़ तो मोदी जी ने भारत के खजाना लद्दाख के लिए खोल के रखा है। फिर भी हमारे कुछ सम्मानित नेता लोगों ने जो है कुछ जिद पे अड़े हुए हैं कि हमको ये नहीं वो चाहिए। तो पूरा उम्मीद है इलेक्शन खत्म, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट में तो कुछ घोषणा डिसीजन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है। अब कुछ लोग अनशन कर रहे तो उनको भी हमारे ओर से रिस्पेक्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में जो है अनशन करना वो बेकार है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सरकार दोबारा बनने के बाद मोदी जी ही पूरे लद्दाख का सॉल्यूशन करेंगे, इसीलिए तो हम लद्दाखी होने के नाते भी मोदी जी के साथ जुड़े हैं। अगर हमको लगता है कि भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के साथ धोखा कर रहे हैं, तो हम इस पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट के चप्पा चप्पा आए के क्यों गला फट के काम करेंगे। केवल मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए दोबारा तीसरी बार मोदी जी का सरकार बनने के बाद, 400 पार के सरकार बनने के बाद बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। उसमें लद्दाख के सेफगार्ड को लेके, लद्दाख की उन्नति को लेके, जिस यूटी को मोदी जी ने जन्म दिया उस यूटी को और बढ़ाने के काम मोदी जी ही करेंगे। इसलिए मीडिया के कुछ नैरेटिव्स को देख के आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको कह सकता हूँ इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर को, हम जिस सरकार के साथ खड़े हैं वो सरकार इस देश को, लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश के सीमा सुरक्षा करने वाले सरकार है, और इस सरकार के अलावा दूसरा कोई पार्टी से उम्मीद भी नहीं है। एमपी किरण रिजिजू के लिए अपील करना चाहेंगे हमारे बासर और अरुणाचल? डेफिनेटली माननीय किरण रिजिजू हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानित वरिष्ठ नेता है। वो केवल नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं बल्कि हमारे जैसे जितने भी जो
मंगोलियट रेशल है, हमारे फेस के लोग हैं, हम सब के लिए गर्व है। हम लद्दाख से यहाँ आके किरण रिजिजू के लिए वोट मांग रहा है। हालांकि किरण जी ने जितना यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, यहाँ काम किया, सेंट्रल कैबिनेट में बैठ के, इस सूरत में जो हमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पत्थर उठाने के लिए छोटे छोटे पत्थर के सहयोग होना होता है। इसलिए हम छोटे लोग भी काम पे लग जाते हैं, क्या पता 100 वोट बढ़ जाए, इसी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं। और किरण रिजिजू का जो है केवल नॉर्थ ईस्ट का ही फेस नहीं है, भारत में, मैं दोबारा से कहता हूँ, भारत में जितने भी हमारे जो रेशल के लोग हैं, कहते हैं ना छोटे आँख छोटे नाक वाले, मजाक में कहते हैं, हम सब का गर्व बढ़ाने वाला माननीय किरण रिजिजू है। इसलिए किरण जी को सेंटर में भेजना हम सबका दायित्व बनता है, तब जाके आपके अरुणाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।